So next topic, beta. Derivations of center of mass of some regular bodies. First one is center of mass of a triangular plate. So we are considering this triangular plate of your height, say for example h. Height of this one is capital H. Okay. And the sides of all of this one are same. यानी इसका ये centroid हो जाएगा. मान के चलो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस भी ये है. ठीक है ना? सो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर ऐड करेगा फिर? y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे. सिंस plate is symmetrical about y axis, so center of mass along x axis will be equal to 0. ठीक है ना? The center of mass will lie along which axis beta for me right now? Y axis. इसका total mass मान के चलो capital M है. Total height of this triangular plate is capital H. ठीक है ना? And इसके sides जो है ना 2a, 2a and 2a. ठीक है ना? This distance is also your 2a. This distance is also 2a. And this distance is also your 2a. ठीक है ना? तो सेंट्रॉइड पे लिया है. मान के चलो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर कहीं पर है. Y axis. एक छोटा सा प्लेट ले रहा हूं सामने बेसिकली. ऐसे कितने प्लेट्स बना सकता हूं? n नंबर ऑफ योर प्लेट्स. मान के चलो दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ योर y. इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, दिस एलिमेंटल पार्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ योर y. ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x. तो टोटल h है, तो ये हाइट कितनी बनेगी बेटा? दिस हाइट विल बी इक्वल टू h माइनस y. h माइनस ऑफ योर y. ठीक है ना? एंड विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? इसका जो विड्थ ले रहे हैं अपन, द विड्थ ऑफ दिस प्लेट इज से फॉर एग्जांपल dy. ठीक है ना? So first calculate the, as it is a right type of a body beta, two-dimensional body. So I can say that mass per unit area, यानी sigma. Sigma of the plate will be equal to how much? Sigma is equals to your mass divided by इसका area. Area of the triangular plate क्या होता है बेटा? Half into base 2a into height, that will be equal to h. यानी this will be equal to how much बेटा? Half into the height कितना है? 2a. यानी 2 gets cancelled. So this will be capital M divided by A into H. This is the surface mass density of the triangular plate. Total के लिए. Clear है? Mass of this part will be equal to how much बेटा? dm. Total का mass कितना था? Capital M. Done? चलो. Now this small का हम लोग small area का अपन mass निकालते हैं basically. So if I need to calculate the area of this one, so for small area, the small area, it is nothing but dA. dA will be equal to इसका area बन गया मेरे पास dA. इसका total area of the triangular plate will be equal to half into breadth is 2a into your height is nothing but equal to your h. So dA value will be equal to how much बेटा? इसका ये distance कितना है? 2x into breadth will be equal to how much for me? dy. Length into breadth. ठीक है ना? I'm giving the names for this one. छोटा सा मान के चलो, this is your A, this is your B, and this one is C. ठीक है? This part is your A, this is your B, and this one is your C. Okay? And ये perpendicular है exactly यहाँ पर, इसका center है मान के चलो वो. And ये मान के चलो this one is your D. Clear? Now, are you able to see the similar triangles in this one, beta? Are you able to see the similar triangles? See here, triangle ABC will be equal to triangle AOD. beta. BC will be equal to triangle AOD. Similar triangles. And ABC के लिए I can write this one as a viewer. X divided by, this will be your X divided by your A. X divided by A. Aya? X divided by your A will be equal to your, this will be your H minus Y divided by H. And X value will be equal to your A divided by capital H into capital H minus of small y.
सो इट इज द वैल्यू ऑफ योर x। एक छोटे से पार्ट का जो एलिमेंट का हम लोग ने x लिया हुआ ना, x वैल्यू इज इक्वल्स योर a into your h divided by sorry into h minus of x। so hence area is very small, area is very small, I can write dA value will be equal to how much beta? dA is equals to your 2x into dy। यहाँ पर लिखता हूँ इसको। So this will be equal to 2 into x की वैल्यू आ गई मेरे पास a divided by capital H into your h minus of your y into your dy। लिख सकता हूँ मैं सर, इसलिए अब स्मॉल मास निकाल लीजिए बेटा। स्मॉल मास यानी dm, dm will be equal to your sigma into dA। ठीक है ना? So that will be equal to sigma, sigma की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, it is your m divided by a into h into dA, dA is equals to 2a divided by capital H into h minus y into dy। डन बेटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसको सिंप्लीफिकेशन ही करना है मेरे पास। dm की वैल्यू आ गई बस, so this value will be equal to how much बेटा? This is 2, this is m divided by a वाला a और a वाला a will get cancelled, so this will be equal to your h square into capital H minus y into your dy। ठीक है ना? So this is your dm, isn't it? So I need to calculate right now for the value of your mass, and xcm का फॉर्मूला हो गया। Now use the formula right now for this। यहाँ पर मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ, देखो ycm का फॉर्मूला डाल दीजिए। ycm is equals to integral of y into your dm divided by integral of your dm, and that will be equal to 1 by capital M integral of your y into your dm। Done? Clear? चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो अभी। ycm is equals to integral of your y into dm की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 into capital M divided by your h square into capital H minus y into your dy divided by capital M। तो capital M पे कैंसिल हो गया, so ycm will be equal to, अब कांस्टेंट से बाहर निकाल लीजिए, 2 divided by h square will be out, इंटीग्रल h को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन गया मेरे पास h into y minus of your y square into your dy। Limits will be from 0 to your h, that means this value will be equal to 2 divided by your h square into this value will be equal to h out integral of y into dy। क्या हो जाएगा बेटा? y square divided by 2 minus integral of y square into dy कितना हो जाएगा? y cube divided by 3। I hope you know this integration। Limit will be from 0 to h। इंटीग्रेशन करने आया सभी को या बोलना है फिर से? नहीं ना? चलिए, so that is equals to 2 divided by your h square into this value will be equal to y में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो h square divided by 2 हो जाएगा, यानी this will become for me h cube divided by 2 minus this also will become for me h cube divided by 3। तो this value will become for me 2 h cube बाहर आ जाएगा divided by यहाँ पर h square out, this is 1 by 2 minus of 1 by 3। तो h square ये h चले गया, so this will be equal to 2 into h into 1 by 2 minus of 1 by 3, so this will become for me 1 by 6। so 2 h cube divided by 6, ये 2 हो गया, so this will really become for me how much बेटा? h cube divided by 6, and 2 1s are 2 3s are, so that will be equal to h divided by 3। तो सेंटर ऑफ मास इसका कितना बन गया बेटा? therefore I can write here ycm will be equal to your h by 3 and xcm will be equal to 0, so this will be the center of mass। so for the triangular plate the center of mass is lying along y axis, so the value of that one is h by 3 and along x axis it is your 0। ये तो पूरा कैलकुलेशन ही बेसिकली, बस अपने को एरिया निकालने का तरीका आना चाहिए था। एक बार देख लीजिए बड़े जल्दी से, कुछ पार्ट में कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई हेल्प यू आउट विद दिस वन। यहाँ पर थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
डन बेटा। चलो नेक्स्ट वन लिखिए। सेंटर ऑफ मास of uniform solid core, center of mass of uniform solid core, ठीक है। अपने पास एक सॉलिड कोन है बेटा इस तरह से, ये इसका बेस है और ये इसका वर्टिकल हाइट, और ये हो गया इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया ये रेडियस। सॉलिड है बेटा पूरा, ओके सॉलिड है। अब मैं इसको फिर वो नहीं कर रहा बेसिकली। और टोटल हाइट ऑफ दिस वन इज, मान के चलिए h, सेम जैसे प्रीवियस करें ना उसको इसी तरह से कर लेते चले जाना। अभी सॉलिड कोन जो सा आइसक्रीम होता है ना, कोन आइसक्रीम, तो ये सॉलिड कोन को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटल डिस्क में कट कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग वन स्मॉल एलिमेंटल डिस्क यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। सो वन स्मॉल एलिमेंटल डिस्क ऐसा पूरा, ठीक है ना, विच इज डिस्टेंस ऑफ y, मान के चलिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका विड्थ है मान के चलिए dy, ठीक है ना, क्योंकि जब ये डिस्क निकालते हो ना तो दैट विल बी हैविंग सर्टेन विड्थ राइट नाउ फॉर दैट, ठीक है। मास ऑफ दिस प्लेट, टोटल मास ऑफ दिस वन इज कैपिटल M, मास ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क इज राइट नाउ फॉर मी से फॉर एग्जांपल dm, और इसका विड्थ कितना है dm, isn't it? Mass of this one is capital. Again similar triangle का concept लगा लीजिए। So from similar triangles, पर similar triangles, ये वाला एक ट्राइंगल होता है, इसका रेडियस मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल r, इसका रेडियस हो गया स्मॉल r। ये कितना बन जाएगा बेटा, कैपिटल H माइनस स्मॉल r, जैसा आपकी मर्जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। यानी r डिवाइडेड बाई y, r divided by y is equals to your, so this will be equal to r divided by your h, r divided by your h, ठीक है। So what you are doing here, you are considering an elemental disk of mass dm. So first step I can write here, we consider an elemental disk of mass dm, of mass dm। अब ये dm निकालने का तरीका, अब इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर एक्ट करेगा, y एक्सिस पे, तो xcm 0 हो जाएगा। तो ycm के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू योर dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो अपने को अभी निकालना क्या है dm, तो dm निकालने का तरीका बेटा, कटेड मास विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा बेटा बताइए, ओरिजिनल मास, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉलिड कोन है ना, isn't it? So that will be equal to how much for me, rho, rho is equals to m by your volume. So this will be rho is equals to your m divided by volume will be equal to 1 by 3 pi into r square into h, यानी ये बन गया मेरे पास 3 into capital M divided by pi into your r square into your h. So dm will be equal to how much better, rho into your dv. Done. Done बेटा, चलो। सो यहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए, इसका वॉल्यूम विल बी हो गया इसका एरिया इनटू इट्स थिकनेस dy। तो अब इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो रेट इज सिग्मा, सिग्मा की रो की वैल्यू कितनी हो गई 3m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इनटू योर h,
इंटू डीवी एरिया, इसका एरिया कितना हो गया बेटा सर्कुलर डिस्क का एरिया हो गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू योर डी वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ क्रॉस हो रहा है क्या देख लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 3 कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू योर आर स्क्वायर इंटू योर एच इंटू पाई, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आर वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई एच, यानी ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर एच स्क्वायर इंटू योर डी वाई, कुछ कट रहा है क्या, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीएम कितना बन जाएगा बेटा, डीएम विल बी इक्वल टू योर, बताइए कितना बन जाएगा डीएम, ठीक है। तो ये डीएम कितना बन गया बेटा, कटेड मास विल बी इक्वल टू योर 3 इंटू कैपिटल एम इंटू ए पाई, और ए पाई भी कट गया, सो इंटू योर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया एच इंटू एच, दिस विल बी इक्वल टू योर एच क्यूब इंटू योर डी वाई, ठीक है, क्लियर है बेटा, 3m y square divided by h cube into dy, this is the cutted mass of that elemental disk will be equal to 0, ठीक है। तो YCM निकाल दीजिए, तो YCM will be equal to 1 by capital M, this is your integral of your dm into your y, तो ये हो गया मेरे पास 1 by capital M इंटीग्रल, dm की वैल्यू है यहाँ पर 3m into your y square, 3m into your y square divided by your h cube into this will be y into your dy, ठीक है ना, इज दैट क्लियर, क्लियर है बेटा यहाँ तक, एनी डाउट टू एनीवन, चलिए तो YCM और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा, YCM इज इक्वल टू AM और AM तो कट गए, ठीक है ना, और 3 बाई एच क्यूब 3 डिवाइडेड बाई एच क्यूब तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू वाई, दिस विल बिकम फॉर मी वाई क्यूब इंटू योर डी वाई, ठीक है ना। डाउट टू एनीवन, अब इंटीग्रल कर लीजिए इसका, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई योर एच क्यूब, integral of y cube into dy will be equal to how much beta, h power of 4 divided by your this will be equal to 4, तो h cube और ये चले गया and the limit will be equal to your h ले रहा हूँ ना डायरेक्टली 0 to h डाल दे रहा हूँ इसे, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ y cube will be equal to y power 4, limit will be from 0 to your h, ठीक है ना, तो ये बन गया 3h divided by 4, so therefore YCM is equals to 3h by 4 from vertex, from base कितना होगा बेटा, from base YCM will be equal to capital H minus YCA, that is your capital H minus 3h divided by 4, and this will be equal to h by 4, done बेटा, आ गया सभी को, फ्रॉम बेस अगर पूछ रहा है तो h by 4 है, फ्रॉम वर्टेक्स अगर पूछ रहा है तो 3h by 4, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर a वैल्यू पे, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाइट करेगा बेटा, यहाँ से अगर पूछा तो सेंटर ऑफ मास विल बी एक्टिव 3h by 4, अगर बेस से पूछा तो इसकी वैल्यू हो गई h by 4, डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना है बेटा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है।
एनी डाउट टू एनीवन यहाँ पर? आया सभी को? सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं बेटा यहाँ पर? दिस आर योर सिमिलर ट्रायंगल्स बेटा। ये वाला एक ट्रायंगल होता है, फिर उसके बाद ये वाला एक ट्रायंगल होता है। जैसे से पहले करें ना वैसे ही करना, ज्यादा कुछ नहीं। ट्रायंगुलर प्लेट, ये तो सॉलिड के लिए था। अगर मैं कोन के लिए बोलूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ हैलोपोल, center of mass of your halopole. इस समय कौन ले रहा हूं? कैसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ये तो पूरा हैलो है। दिस वन इज ऑफ योर रेडियस आर, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ले रहा हूं यहां से यहां तक, देख लीजिए 0,0 इनिशियल। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, इस पे लाई करेगा। इसकी हाइट है मान के चलो h या कैपिटल H, एनीथिंग इज फाइन फॉर। So what I'll do is right now I'll consider a small elemental ring in this. एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा कट कर सकता हूं मैं बेसिकली, ठीक है ना, जिसका थोड़ा थिकनेस आ जाएगा। और इसका रेडियस जो है ना यहां से यहां तक ले लीजिए, दैट इज नथिंग बट से फॉर एग्जांपल सम x, ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? और इसका विड्थ, स्मॉल विड्थ ले लीजिए। दिस विड्थ विल बी इक्वल टू y एक्सिस पे तो मैं dy ले रहा हूं, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर एट योर y, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है y बेसिकली। क्लियर है? सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, we are considering an elemental ring of increasing radii, of increasing radii. So that will be equal to dm will be equal to this will be equal to your rho into your इसका area will be equal to 2 pi x into your dy हो जाएगा बेटा, isn't it? Volume, total length 2 pi x into your dy, क्योंकि अगर इसको कट करूं तो I'll be getting right now this one as total circumference, that is 2 pi into your x, और इसका width बन जाएगा dy, इसका एरिया बन गया मेरे पास राइट नाउ सिग्मा इंटू योर दिस वन, सो ये सिग्मा आ जाएगा, सॉरी, तो ये हो गया सिग्मा इंटू योर 2 पाई इंटू योर x इंटू योर dy हैलोपोल, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो वैसे हम निकाल दीजिए अब इसमें से सीधा, वैसे m इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू योर dm डिवाइडेड बाय योर कैपिटल M, ठीक है ना। So that is equals to your 1 by capital M बाहर आ जाएगा, this will be equal to your integral of your this is sigma into 2 pi into your x into your dy into your y, ठीक है। So that value will be equal to how much बेटा?
क्या क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दीजिए। 2 पाई सिग्मा, ये क्या है, एक्स है। एक्स क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, देखो इसको पहले इसका मास निकाल लेता हूँ। टोटल मास विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल मास विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इसका टोटल एरिया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखो, सिग्मा हो गया है 2 पाई एक्स इंटू योर वाई, dm will be equal to your 2 पाई एक्स dm m। यही कर लेता हूँ मैं। हाँ, टोटल मास डाल के भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर मैं अगर ऐसा कर लूँ तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको डीएम ले लूँ क्या, इंटीग्रल ऑफ योर डीएम that is equals to your integral of your y into this one is right now for me sigma 2 pi x into your dy divided by ये भी कितना हो जाएगा बता, integral of your dou into 2 pi into your x into your dy, ठीक है। ये 2 पाई एक्स gets cancel और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ योर y into your x into your dy, ठीक है। दिस वन इज इंटीग्रल ऑफ योर x into your dy, ओके, ठीक है चलो। इसमें से मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लो tan, अगर ये मान के चलो एक छोटा सा एंगल बना रहा है यहाँ पर अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू योर x बाई वाई, सो tan अल्फा टोटल के लिए कितना लिख सकता हूँ बेटा, r बाई और h इज इक्वल्स टू योर x डिवाइडेड बाई वाई, सिमिलर ट्रायंगल से x की वैल्यू आ गई r इंटू योर y डिवाइडेड बाई योर h, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ यहाँ पर, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल y इंटू दिस इज r इंटू वाई डिवाइडेड बाई h इंटू योर dy divided by this is integral of r into y divided by h into your y, ठीक है ना। और ये हो जाएगा y into dy, तो इसमें से क्या आएगा बेटा, ए वाई और ए वाई तो क्या निकल गया, नहीं ये तो स्क्वायर है ना, सॉरी बाजू बाजू पे, तो आर बाई एच बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, इसमें भी आर बाई एच बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा वाई इंटू योर डी वाई, कुछ कट हो रहा है क्या देखो, x is nothing but r into y by your h into ये y नहीं आएगा ना, फिर ये y क्यों एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो r by h अगर बाहर आ गया तो दिस विल बी इक्वल टू y into your dy, ठीक है ना। ये r by h, ये r by h gets cancel, that is equals to integral of your टोटल हाइट क्या लिया मैंने, 0 से h ले रखा है, दिस वन इज आल्सो 0 से h, इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर into dy कितना बन जाएगा बेटा, y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to your h, और ये बन गया इंटीग्रल ऑफ y into dy is nothing but y square divided by your 2, limit will be from 0 to your h, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो तो h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 divided by this will be h square divided by 2, h square and h cube will get cancelled right now for this one, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, so this value is coming out for me ycm is equals to 2 ऊपर चले जाएगा, so this will be equal to your 2h divided by 3, यानी ycm from the vertex
इज कमिंग आउट फॉर मी 2h/3, यानी ए वाला जो हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू जो हो जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 2h/3। अगर मैं इसको ऐसा लिखता फोन पे, तो अगर बेस से अगर पूछता तो क्या आंसर होता, वर्टेक्स पे तो मेरे को आ गया आंसर, दैट इज नथिंग बट 2h/3, इजंट इट? अगर बेस से पूछते तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 2h/3, ठीक है नहीं? So that will be equal to how much work limit? h by कितना आ रहा है? Then for a cone अगर बेस से ले रहा हूं तो h/3, वर्टेक्स से ले रहा हूं तो 2h/3। क्लियर? सॉलिड के लिए कितना था, h/4। ये सॉलिड नहीं है ना बेटा, ये सॉलिड नहीं है, एक रिंग है, एरिया हो जाएगा ना। एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क, इसका एरिया होना है dA, एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क, लेंथ इनटू ब्रेथ ना, लेंथ विल बी 2πx एंड ब्रेथ विल बी dy, इसलिए 2πx इंटू dy लिया है, 2 डायमेंशन बॉडी होती है बस। क्लियर है? हाँ क्वेश्चंस भेज दो बेटा, दे विल डू इट आउट। डन? See my WhatsApp number. Tuba, this is my WhatsApp number 7780581828। इस पे अभी आप भेज दो, मैं आपको प्रॉब्लम करवा दूंगी। डबल 7780581828, क्योंकि अभी ये सिस्टम पे लगा हुआ है तो ओपन करने में आसानी हो जाती है, इसलिए। ठीक है, अब ऐसे ही करते चले जाना बेटा, सॉलिड कोन के लिए, हैलो स्फीयर के लिए, वैसा सबके लिए करते जाऊंगा, खाली लेंथी कैलकुलेशन से रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग को इसलिए मैंने डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखवा दिए थे, वो रिजल्ट्स आप लोग याद रख लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। ये वाले लिखवाया था मैंने, सॉलिड कोन, हैलो कोन, सबके लिए लिखवाया था, तो ऐसे वाले को आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। ये वाला तो मैंने कर दिया था, ये वाला भी डेरिवेशन किया मैंने, और हैलो कोन भी किया, सॉलिड कोन भी किया। सॉलिड हेमिस्फीयर है, हैलो हेमिस्फीयर है, उसके लिए आप जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है ना? और कल से विल स्टार्ट विद योर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है?